So hello students, let us discuss exercise 1C. Okay, in this exercise, as we have done multiplication of the numbers, so in this exercise we will do the division of numbers in the same method as we have done. If the negative sign comes odd times, then the answer is negative. If the negative sign comes even times, then the answer is positive. Remember this rule. Okay, so after this rule, by remembering this rule, we will start the exercise. There are some properties also of division. You can see in the examples, or you can see on the page number 14 and 15. I will discuss by question wise. Okay, so now first question is evaluate the following. Evaluate means simply you have to solve this. So first of all, you will simply divide the numbers. Leave the sign. Sign को भूल जाओ, sign को ना देखो. अगर 60 10 से divide होता तो what will be your answer? You know your answer is 6. 60 divided by 10 is 6. तो but minus कितनी बारी आ रहा है? Odd times 1. 1 means odd. So answer is minus 6. Easy है ना? Let's take another example. Sixth part. Sixth part है minus 87 divided by minus 1. वैसे तो 87 divided by 1 is 87, we know, but minus कितनी बारी 2 times आ रहा है, तो आंसर इज प्लस, क्योंकि इवन टाइम्स है. ठीक है ना? So similarly I think you can clear, concept is clear, you can solve the all questions by yourself. Okay, now second question भी same है, इसमें बस fill in the blanks है. So now let us discuss question number second. I will explain only 3 parts to you, okay? Because they are also very simple. As we have seen, there is a fill up. 40 divided by dash is equal to minus 5. माइनस को भूल जाओ. पहले ये सोचो कि 40 को किससे डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए. As we all know, 40 divided by 8 is 5. तो अब साइन देखना है. साइन या माइनस है, इट मीन या तो ये माइनस है या ये माइनस है. ये तो पॉजिटिव है, इट मीन ये ही नेगेटिव. अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों में से एक नेगेटिव होगा तभी आंसर नेगेटिव है. तो ये तो पॉजिटिव है क्वेश्चन में, इट मीन इट मस्ट बी नेगेटिव. अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 6 पार्ट. 397 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 397. मतलब किससे डिवाइड करें? सेम ही नंबर है तो 1 से डिवाइड होगा, वो भी पॉजिटिव. थर्ड आंसर नेगेटिव है, भूल जाओ नेगेटिव. 30,000 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 300. इट मीन साफ दिख रहा है कि 100 आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. बट माइनस आएगा कि प्लस, वही सेम फर्स्ट वाला ही है, ये तो कॉन्सेप्ट है ना. तो ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत इजी है कि आपने बस यही सोचना है किससे डिवाइड होगा, तो फिर अब से भर दो बस. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड एंड फर्दर. सो इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. As we have seen, there is a plus also, negative also, divide also. So we will apply the BODMAS rule. Simple. When all operations are there, we will apply BODMAS rule. Simple. Okay. From the 4th class, I think we are doing this method. So first of all, solve the bracket. Leave all the thing as same. First of all, minus 2, open करो minus 2, minus 1 and plus minus. तो यहाँ तक आ गए. Now 45 divided by minus 2 and minus 1 is minus 3. Now it is a question of division. 45 divided by 3 is 15. Minus comes one time, so answer is minus 15. है ना easy? First of all, solve the bracket, then do the operation like this. Now इसका एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. ओके, 6th पार्ट. लेट अस डिस्कस 6th पार्ट. ओके, 6th पार्ट है 25 डिवाइडेड बाय 5, ये एक ब्रैकेट में है. देन डिवाइडेड बाय minus 5 divided by 5.
ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द फर्स्ट ब्रैकेट। 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5 डिवाइडेड बाय, पहले माइनस भूल जाओ, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, वी ऑल नो, क्योंकि माइनस 1 टाइम है तो माइनस 5 को अगर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, पहले तो 1 से डिवाइड करो तो 5 आ गया, बिकॉज माइनस है 1 टाइम तो आंसर आ गया -5। इजंट इट इजी as we are applying the simple board mass method, so I think you can now do the all parts by yourself, okay, understood। so now let us discuss fourth part में भी simplify करना है board mass rule से। let me explain you one, ये तो आप खुद ही कर सकते हो, पहले डिवाइड करो फिर जो आंसर आया फिर मल्टीप्लाई करो फिर एंड में प्लस माइनस कर दो, तो आई थिंक do it yourself, the fourth part also by yourself। now discuss the fifth question। so in this question we have given that a divided by b is equal to -3 and you have to tell the what will be the value of a and b, okay। so उसने एक एग्जांपल अपनी तरफ से दे दी कि a को मान लो -12, b को मान लो 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -3 आएगा ना। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, माइनस एक बार है तो -3। नाउ इन द सेम वे ये तो हो गया एक पेयर हो गया -12 एंड 4 a और b की वैल्यू। इसी तरह हमने 5 पेयर्स लिखने हैं अपनी तरफ से, ये तो है नहीं और किसी को डिवाइड करके 3 आएगा नहीं, आ सकता है जैसे मर्जी कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 1 भी तो आ सकता है 3, क्योंकि माइनस चाहिए तो माइनस कर लो, ओके। तो a की वैल्यू आ गई -3, b की वैल्यू आ गई 1, ये मेरा हो गया दूसरा पेयर। तो इन द सेम वे यू हैव टू राइट डाउन द 5 पेयर्स, मतलब बाकी 3 आप खुद लिखो, ओके। 6 क्वेश्चन में वी हैव टू वेरीफाई करना है कि वो इसके इक्वल नहीं है, एज दिस इज अ प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी। हमने मल्टीप्लाई में सीखा था कि मल्टीप्लाई में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लाई में वो फॉलो करती है उसको ओवर एडिशन में, बट इसमें क्या है कि a डिवाइडेड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b एंड देन प्लस a डिवाइडेड बाय c, ये इक्वल नहीं होगी। डिवीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव में इवन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करती डिवीजन में स्पेशली, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यों नहीं करती, एग्जांपल लेके करते हैं। a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 4 है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखो वो कह रहा है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू, शो करना हमने, वेरीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई करना है कि ये a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लें, ये वाली a डिवाइडेड बाय b प्लस c, a द वैल्यू ऑफ a इज 20 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू -2 है तो इसको छोटी ब्रैकेट, इसको लार्ज ब्रैकेट रखो, प्लस c की वैल्यू 4 है तो 20 पहले डिवाइड ये करो, 4 - 2 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरा 10 आ गया। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, a की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, तो यहाँ पे लिख दो 10 क्योंकि माइनस एक बार है तो -10, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज एज वी ऑल नो 5, नाउ प्लस 5 -10, तो व्हाट विल बी द आंसर, इंटीजर याद करो तो -5। क्या ये दोनों इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल।
सो हेंस वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, दिस इज प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो ये इक्वल नहीं होती, राइट. तो 6 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. नाउ लेट अस डू द 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स. ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकंड इंटीजर है, हमें नहीं पता कौन से हैं वो. तो ए और बी लगा लो, ए एंड बी, मुझे नहीं पता ये कौन सा है. द आंसर ऑफ द टू इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज 180. इट इज गिवन इन द बुक. इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -12, दोनों में से एक नंबर -12, तो a की वैल्यू -12 लगा देते हैं, b की वैल्यू नहीं पता, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई. तो b कैसे सॉल्व करोगे? मतलब b एक तरह का आपका डैश है, या तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 180 आ जाए, है ना? तो आप डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा. आई थिंक 15 आएगा. ठीक है, ठीक है, 15 ही आ रहा है. तो आप 180 को 12 से डिवाइड करके देख लो, तो आंसर आ गया 15. तो आप लिखोगे b मस्ट बी, या सेकंड नंबर मस्ट बी 15, क्योंकि ये माइनस है. तो b आंसर हमारा +180 है, तो b की वैल्यू -15 होनी चाहिए कि +15 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है. तो माइनस इंटू माइनस तभी प्लस बनेगा ना. तो b मस्ट बी -15, ठीक है ना, टू गेट द आंसर, टू गेट 180. तो ये आपका आंसर हो गया. अगर आपने इसको सॉल्व करके बताना है तो ऐसे कर लो, 180 डिवाइडेड बाय 12. डिवाइड मतलब डिवाइड ऐसे लिख लो, चाहे यू कैन डू लाइक दिस. आंसर आ गया आपका -15. ये आपका सॉल्व मेथड हो गया, वो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया था, फिलअप वाला. ठीक है, तो यू कैन डू बाय दिस मेथड आल्सो. ये ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जब उधर जाएगा तो ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाएगा, राइट. नाउ 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो नाउ इन 8th क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट कि आर में कंपटीशन एग्जाम में बैठा, उसने उस वहां पे गिवन है कि अगर इफ ही करेक्ट द आंसर, तो इफ देन आर विल गेट +5 मार्क्स. ओके, इफ ही रॉन्ग इनकरेक्ट द आंसर, अगर उसका आंसर रॉन्ग हो जाता है देन उसको -2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, और आर के टोटल मार्क्स आए हैं 30 टोटल, और उसको पता है कि उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं. वी हैव टू फाइंड कि उसने कितने आंसर गलत किए हैं. तो हमें पता नहीं, लेट इट बी x. लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय द r इज इक्वल टू x. अब उसने 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, 10 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो मतलब +5 उसको मिलने जाएंगे क्रेडिट. एक क्वेश्चन का +5 मिलता है, तो 10 के कितने मिलेंगे? 50 मार्क्स. ठीक हो गया, इजी ना. नाउ अगर उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमें पता कि इनकरेक्ट उसको पता नहीं x, बट वो इनकरेक्ट के मार्क्स कितने हैं? -2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -2x. ठीक है ना, ये आगे 50 मार्क्स करेक्ट आंसर, ये आगे -2x फॉर इनकरेक्ट आंसर. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड 50 मार्क्स प्लस -2x मार्क्स, इसका जो टोटल है इट मस्ट बी 30. इट मस्ट बी 30, तभी पता लगेगा ना कि ये करेक्ट है ये इनकरेक्ट है. दोनों का टोटल आया 30 मार्क्स उसके आए हैं. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x कैसे फाइंड करेंगे? पहले 50 को उधर ले जाओ, यू विल गेट -2x इज इक्वल टू 30 -50. पहले माइनस होगा, -20 आ गया, माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 10. मतलब उसने 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं. ये तो आपका अगर सिंपल सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, राइट. ओके, यू कैन आस्क मी इफ यू विल नॉट क्लियर दिस.
सो 9th क्वेश्चन में इट इज गिवन इन द बुक कि आपको पता ही है कि अगर पॉलीगन गिवन है आपको, भाई पॉलीगन गिवन है ना, एंड वी हैव गिवन द पेरीमीटर और एक साइड दी हुई है, मान लीजिए 4 है, पेरीमीटर दिया है 24, पेरीमीटर पता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, कितनी इसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को एक साइड से डिवाइड कर देंगे, ये गिवन है हमें लेंथ ऑफ ईच साइड, तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब ये कितने साइड्स की पॉलीगन है ये हमें पता लग जाएगा। अगर पेरीमीटर गिवन है और वन साइड गिवन है तो ये इसका आंसर वैसे 6 आएगा, क्योंकि अगर ईच साइड 4 होगी तो पेरीमीटर विल बी 24, 6 4 24, समझ गए। इट मस्ट बी रेगुलर, यहाँ पे रेगुलर लिखा होगा, अगर इरेगुलर है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका ये फॉर्मूला गिवन नहीं है, आप हिंट में से देख लो, अगर नहीं समझ आया यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड हो गया, ये लिखा हुआ है 1 जनवरी को, 2nd को, 3rd को, 4th को, 5th को। वी हैव टू फाइंड द एवरेज टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ द एनी नंबर। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम मीन फाइंड करते थे ग्रेड 6 में, मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसमें भी वही है। एवरेज कैसे फाइंड, सो एज एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो इसमें सम क्या है, सभी को ऐड कर दो, -4 + 3 + 0 + -6 + 2, इन सभी नंबरों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी दे आर 5, तो वी विल डिवाइड बाय 5, तो दिस इज द एवरेज टेम्परेचर, ये आपकी एवरेज टेम्परेचर आ गई 5 डेज की। ये तो आप खुद करो, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड माय पॉइंट। नाउ लेट अस डिस्कस 11th क्वेश्चन। इसको प्लस करके माइनस करके जो भी आंसर आएगा यू विल डिवाइडेड बाय 5, यू विल गेट द आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन, नाउ 11th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। वी हैव गिवन दैट कि स्टार्टिंग में द एरोप्लेन, द हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज 1800 मीटर, which is flying at the height of 1800 मीटर from the ground level, ठीक है। सो और उसका नीचे आने का रेट है, डिसेंट रेट है 60 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 60 मीटर नीचे आ रहा है। तो हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दैट व्हेन विल इट कम्स 300 मीटर, उसके नीचे से 300 मीटर रह जाएगी हाइट, तो वो कितना टाइम लगाएगा जब उसकी ग्राउंड से 300 मीटर रह जाएगी। तो इट मीन, तो वो नीचे कितना आया, है ना। तो पहले तो ये फाइंड करो, टोटल डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन नीचे कितना आया, पहले तो आप ये करो, डिस्टेंस टोटल है 1800, तो नीचे से अगर 300 मीटर रह जाएगा तो मतलब नीचे कितना आया, वो 1500 मीटर नीचे आ गया, है ना। एरोप्लेन 1500 मीटर नीचे आ गया। नाउ वी हैव गिवन कि 1 मिनट में वो 60 मीटर नीचे आता है। इन 1 मिनट, या ऐसे करो, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम को हम उधर रखेंगे। इन 60 मीटर the plane will descend at time 1 मिनट, मतलब 60 मीटर प्लेन 1 मिनट में नीचे आता है। तो 1 मीटर कितनी देर में नीचे आएगा, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट में, या ऐसे लिखो द टाइम, यहाँ पे टाइम लिखो आप, ठीक है ना। द टाइम गिवन टेकन बाय प्लेन टू डिसेंड, द टाइम इन 60 मिनट, द टाइम टेकन बाय
plane to descend, मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगाया उसने 1 मिनट 60 मीटर। तो 1 मीटर में कितना टाइम लगाएगा 1/60 मिनट। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना नीचे आया वो 1500 मीटर, मतलब 1500 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा वो, क्या करेंगे 1/60 इंटू 1500, इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर इन मिनट्स। ये आंसर आपका मिनट्स में आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक 25 आ जाएगा इसका आंसर डिवाइड करके। ओके, नाउ 12th question is the same as 11th one, so try it yourself. If you feel doubt, you can ask me. Okay, so thank you, your exercise is over. Okay.